No, I don't know what third front is. You see, we have tried to bring Prakash Ambedkar's party within the FVA fold. We had many rounds of discussions. Initially, he was not quite forthcoming. He was beating about the bush. But finally, we came to the brass tacks. We asked him, which are the seats where you have some strength? Because it is not only to increase the number of each party, it is to win. So where you can win positively, you think you can win positively, we'll consider whether we can concede that seat to you. But that discussion could not take place over about a month or so. But recently we had good discussions. We had offered some seats to him. Some of the seats which he wanted we have given to him. But he's not responded properly. He says doors are open for discussion. Our doors are open for discussion. We sincerely want that all the people who are opposing Mr. Modi, they should not divide their votes. The opposition vote should not be divided because that gives advantage to Mr. Modi. And Mr. Modi precisely wants to do that. He wants to put up as many candidates as possible so that opposition votes get divided, and with his votes he goes past the post. It's a system first past the post. So he said that I'm still open, although I have announced some candidates, which is good. He has given another deadline. He has just stated after meeting Vasant More that after April 2nd, the picture will be quite clear that how many parties are with me. It's an indication that he's moving for third front. Don't you think so? See, I think if he doesn't come in the Mahavikas Aghadi, then he's helping BJP to divide Congress vote. Whatever it's called, the third front, fifth front, 10th front, that doesn't matter. Whether the opposition vote would be divided in any particular constituency, whether it's Pune, whether it is Nagpur, whether it's anything. So our appeal to him is not to divide the opposition vote. We have offered him many seats, and I think he should be satisfied with it. And the important point is not only he himself, but 4 or 5 or 6 of his colleagues will become MPs and will become second-rank leaders. Doesn't he want more and more of his supporters to become MPs and become important leaders? I don't know. If he comes with... if he comes with us. So it's up to him. Our doors are always open. जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं संजय निरुपम की तरफ से नॉर्थ वेस्ट सीट्स को लेके, जिस अमोल कीर्तिकर को जो सीट अनाउंस की गई उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से, ईडी की तरफ से दूसरा समन भी उनको गया है, तो उनका भी फिलहाल में स्टेटमेंट आया कि ट्वीट करके जानकारी दी उन्होंने कि क्या वो जेल से प्रचार करेंगे। और लगातार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की विपरीत स्टेटमेंट या महाविकास आघाड़ी की जो स्टैंड है उससे विपरीत स्टेटमेंट। नहीं, कोई विपरीत नहीं है। अब देखिए, कीर्तिकर जी को ईडी का समन दिया, क्या हम उसका स्वागत करेंगे? और मैं तो कहता हूं अगर जेल से लड़े तो वो जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। देखिए, ये जो कोर्सिव टैक्टिक्स चली है सरकार की, जो ये दमनकारी नीतियां चल रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाजपा का आत्मविश्वास ढल गया है। उनको भरोसा नहीं कि क्या वो चुनाव जीतेंगे। शायद वो पक्का मान रहे हैं कि चुनाव हम नहीं जीत रहे, तो इसलिए ये सब अटकलें चल रही है। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है 1700 करोड़ का, 1800 करोड़ का। केजरीवाल को अरेस्ट कर दिया गया है। इधर कीर्तिकर की जो ईडी का समन्स आ रहा है, किसका मतलब क्या है? बालाकोट जब हुआ तब मोदी जी को पता था कि 8-10% वोट का फायदा होगा। अब की बार उन्हें लगा कि राम मंदिर वो काम करेगा, लेकिन राम मंदिर का नहीं हुआ क्योंकि एक इवेंट था वो, और सरकार के उसमें कोई हाथ नहीं था। वो तो एक 2 प्राइवेट ट्रस्ट का झगड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को जमीन दे दी, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, मंदिर बांधा है। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है उनका। तो इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है? तो वो क्या का क्रेडिट ले रहे, तो उनको नहीं मिलेगा क्रेडिट। तो आप ये कह रहे हैं कि बालाकोट राम मंदिर के बाद अभी ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, तो उनको बौखला गए हैं। किसका इस्तेमाल करें? क्या केजरीवाल को जेल में डाल दे, या ईडी का नोटिस भेजे, इनकम टैक्स का नोटिस भेजे? उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। उनको एक बात समझ रही कि विपक्ष को लड़ने से कैसे दिक्कतें खड़ी की जाए, वो कर रहे हैं। और जिस तरह से सर जो स्टेट्समैन निरुपम जी दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि उनका भी चारों जो ऑप्शंस हैं वो खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो तो काफी इच्छुक हैं वो सीट से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, राजनीति में हर एक व्यक्ति के सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। वो क्या ऑप्शन सिलेक्ट करता है या नहीं करता,
वो अपने पर निर्भर करता है। टिकट मांगने का अधिकार तो हर एक को है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा। पर सर कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय वोट हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे लगता है आपको, क्योंकि उनका एक काफी दबदबा है उत्तर भारतीय जो वोट्स हैं उसको। देखिए, मैं एमपी भी रह चुके हैं। मैं ऐसे नहीं बात करूंगा, मैं मुद्दों की बात करूंगा। ये कोई जाति की या कोई जगह की, कहाँ से लोग आए हैं, क्या करेंगे, उसमें मत जाइए। आज देश के सामने एक अहम सवाल है कि क्या इस देश का जनतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको तोड़ मरोड़ कर दिया जाएगा, जिसके लिए 370 सीटें जीतने का सवाल उठाया है बीजेपी ने। अगर उनकी मंशा है कि 2/3 बहुमत, 370 के करीब अगर सीटें आए, 2/3 बहुमत आए, तो हम संविधान बदल देंगे। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान का ढांचा रहेगा, शायद नाम रहेगा, लेकिन अंदर कोई जान नहीं रहेगी। तो ये जो अटकलें चली है, इसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक बात और है, सांगली सीट को लेके जिस तरह से जो प्रत्याशी अनाउंस किया गया है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से, कहीं ना कहीं वो अभी भी आप दावा करते हैं कि वो कांग्रेस की सीट है और उसमें अभी भी फेरबदल हो सकता है। देखिए, हमारी 48 सीटों में से करीब 45-46 सीट पे आम राय बन चुकी है। हमारे उम्मीदवार तय है, कौन लड़ेगा वो भी तय है। एक दो जगह हमारे एक डिफरेंट अप्रोच है, हमारे मतभेद है, मैं कहूँगा मनभेद नहीं है। और क्या मतभेद है कि एक पार्टी सोचती है कि मेरी पार्टी का ये प्रत्याशी ताकत से चुनाव लड़ेगा, सीट जीतेगा। वही सामने वाली पार्टी सोचती है कि मेरी पार्टी का ये प्रत्याशी चुनाव ताकत से जीतेगा। ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है। अब से कोई ये तो है नहीं कि कोई थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर नापते हैं या किसी को वजन करते हैं कि कौन भारी है। ये तो परसेप्शन की बात है। कांग्रेस क्लेम नहीं करेगी सांगली सीट को लेकर? नहीं, हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम फैसला तो करना पड़ेगा ना। दोनों क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने तो प्रत्याशी अनाउंस कर तो वो पहले किया था, आज नहीं किया। ये पहले अनाउंस जो लिस्ट आपने जारी की वो उससे थी, उसके 4 दिन पहले जब सांगली गए थे उद्धव जी, उन्होंने घोषित किया था। और महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने भी प्रत्याशी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे कोई प्रत्याशी अनाउंस करने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तीनों दलों को बैठ के एक आम राय बनानी पड़ेगी। किसी को एक कदम आगे, किसी को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। हमने अगर 45-46 सीटों का निर्णय लिया है तो 2-3 सीटों की बात है, चर्चा होकर खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं कि क्या पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। तो क्या महायुति की सारी सीटें तय हो गई है? So are you saying that Sangli seat which announced by Uddhav Bala Saheb Thackere's Shiv Sena, the seat is yet to be locked? देखिए, they have claimed that they would contest from Sangli. We have claimed that we would like to contest from Sangli because we have got a stronger candidate, we have got better chances of winning. तो ये तो हमारा अपना परसेप्शन है, उनका अपना परसेप्शन। उन्होंने शब्द दिया है कि आप लड़ेंगे करके, अलग बात है। तो ये चर्चा होगी। अब हमारे मुंबई की एक सीट के बारे में कुछ चर्चा होगी, शायद भिवंडी के बारे में चर्चा होगी। पूरे कोकण बेल्ट में हमारे पास अगर कोई सीट नहीं रहेगी तो कार्यकर्ता तो नाराज होंगे। वो दूसरी हमारी पार्टी है, उनका भी कुछ अपना तर्क है, अपना दावा है। तो 1-2 सीटों की ये चर्चा होगी, आगे चलेगी। तो उस पर कोई सर लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो आपने कहा 1-2 सीटों पे कहीं पेच अटका हुआ है, उस पर डिस्कशन बाकी है, तो वो कब तक आउट हो जाएगी और कब तक? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कल होती, लेकिन अगर समय लगेगा 1-2 दिन का, कोई बात नहीं, बहुत लंबा है। काफी 3rd फेज में ये सीटें हैं, मुंबई की तो 5th फेज में सीटें हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा।